engineering from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Now we are going to introduce the actual complex numbers. Complex numbers are actually very complex because it is a combination of real number as well as imaginary number. Let's take imaginary unit iota, and then we will take multiply it by any number, say b. So this is any number like 2i, 3i, 4i, minus 3i, minus I by 2, minus 7i, something like this. And if we add a real number a to this number, then this is called a complex number, and we represent it by z. So z equals to a plus ib. In general, we write a plus ib, not a plus bi, but that's okay. So z equals to a plus ib is called complex number, where a and b are real numbers. So a and b belongs to R हो गया, and second जो iota है that we already know, that is equals to -1. So now this is a complex number of the form and is written as a plus iota b. अब a वाला जो पार्ट है that is basically real part, ये जो ib है that is basically imaginary part. Now when we say what is real part of z, that is rez, and real part of z is a. Now when we call what is imaginary part of z, so usually we think it is ib, but actually it is only b, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, आई तो उसके साथ रहना ही है, दैट इज अंडरस्टूड. लाइक इफ देयर इज अ वेक्टर 2i plus 3j, तो उसका आई कंपोनेंट क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं. आई कंपोनेंट है तो उसमें आई तो आएगा ही. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट है तो आई के साथ ही होता है. यू जस्ट हैव टू से b and we understand that it is actually bi. So real part of z is a, imaginary part of z is b. So we can also write this z as real part of z plus iota into imaginary part of b. Now this is basically a two-dimensional thing, I will say, because when we draw these numbers, when we are trying to draw this complex number, just like कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखा होगा, आपको 9th में 10th में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक पॉइंट होता है x, y. अब x, y को कैसे प्लॉट करते हैं? एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है. तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस पे मूवमेंट होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट होता है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस इज इमेजिनरी नंबर. We cannot draw this to simple Cartesian plane, and so we draw this on a complex plane. This complex plane is also called Argand plane.
ना what is this argand plane? ये जो argand plane होगा, it is something like this. Now we have to draw this A plus IB. So I say कि ये जो x axis है ना, take it as 1 unit. So this would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y axis पे जो scale है, we will take it iota. मतलब this 1 unit is basically 1 iota. This 2 unit is basically 2 iota. 3 unit is basically 3 iota. And then similarly 4 iota, 5 iota. Now suppose we have to draw a number z equals to 2 plus 3 iota. So how do we draw that? ये जो 2 है वो रियल, तो रियल एक्सिस की तरफ जाएगा. तो कार्टेशियन प्लेन में जो रियल एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, दैट इज रियल एक्सिस इन आर्गन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में जो y एक्सिस था, इन दिस केस इट इज इमेजिनरी एक्सिस. तो वहां x एक्सिस y एक्सिस था, यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है. बट इन जनरल वी कॉल देम x and y only, doesn't make much difference. So suppose we have to draw 2 plus 3i. So I will get 2 unit on x axis, that is something like this. यहाँ पे कहीं आएगा, you see the pencil, and 3 iota is something like this. So 3 iota will be here. So the point exactly comes out to be at this point. This is your point 2 plus 3 iota. We can also simply say कि 2, 3 बना लो on the simple argand plane, and that will give you 2 plus 3 iota. So this is 2, 3 of simple, and in this case also it is 2, 3, but actually it is representing 2 plus 3 iota, because y axis में 3 का मतलब 3 नहीं हुआ, 3 का मतलब 3 iota हुआ. Now this is point 1, I will say. If suppose we have to draw Z2, and that is 3 minus 2 iota, where will it be? It will be 1, 2, 3 minus 1 minus 2. That is the second point, that is 3 comma minus 2. Z2 ही लिख देते हैं, ये Z1 हो गया. तो you can see. Now let's draw one more point. Z3 is minus 3 plus 4 iota. Think of it, कहाँ होगा? तो minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 4. This would be the point Z3. minus 3 comma 4 ड्रॉ किया तो आपको minus 3 plus 4 आयोटा हो गया. Let's take one more point, minus 2. That is fourth point. Minus 2 कहाँ होगा? Minus 2 का मतलब is basically minus 2 plus 0 iota. तो point will be minus 2 comma 0, and this point is Z5. One more number let us take, 0 minus 3 iota. मतलब सिर्फ 3 iota है. 3 iota will be 0 comma minus 1 minus 2 minus 3, that is Z5 I will say. So this way we can draw any point on this plane. Now if you see this point Z4, what it is simply minus 2, which is actually real number. So yes, real numbers are also part of complex number only. Complex number का subset होता है real number. So all real numbers are basically complex number जिनका imaginary part 0 है. So if you see Z5, what do you see? Z5 में you see it is minus 3i, which is called purely imaginary number. So if I go here by formal definition, I will say कि number is purely real if b equal to 0, and number is purely imaginary if a equal to 0. So that is very simple concept. You can easily tell it on your own also. So this way we draw the points on the argand plane. So now come to the final conclusion that if the point is a plus ib, then the point on the argand plane that we are actually marking is a comma b, and this a comma b is actually called a fix of z.
सो पॉइंट जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो a, b है, and that is actually called a fix of z. So this way we draw the complex numbers on the organ plane. So this is one part, how to draw the complex number and what are complex numbers. Now complex numbers, now you see, are something like vectors. देखो 2D vector you can say with 2i plus 3j. जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, if you see it, it looks like 2i plus 3z kind of number. If you see z2, you see like 3i minus 2j. Because ड्रॉ करने में अगर मैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को i कैप और j कैप बोल देता हूं तो it will become completely vector. So I will say complex number is almost same as two-dimensional vector. So complex number is almost equivalent to two-dimensional vector, and so many places we use it like that also. कई बार ऐसा होगा कि वेक्टर का क्वेश्चन होगा और हमें उससे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल. कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा, हम उसे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ऑर्गन प्लेन. सो जब ये टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है तो उसमें दो क्वांटिटीज होनी चाहिए. लाइक वेक्टर ए आई प्लस बी जे में ए कॉमा बी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई में एक्स कॉमा वाई होगा, ए प्लस आई बी में ए कॉमा बी होगा. सो जो दो यूनिट्स है दैट इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इट गिव्स यू दैट दिस इज अ टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. और टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक हो गया आपका रियल पार्ट, एक हो गया इमेजिनरी पार्ट. वेक्टर में होता है आई कैप और जे कैप. 2D की बात करें तो इफ यू सी इट इन अनदर वे दैट इज इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में वी नो दैट कि इफ देयर इज सम पॉइंट a प्लस आई बी देन वी रिप्रेजेंट इट विद द पॉइंट a कॉमा बी. सो पोलर फॉर्म में x और y जो होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. पोलर फॉर्म में द टू थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इज बेसिकली मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी. मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस आपने कहाँ पढ़ा है? आपने सिंपल नंबर में मॉड पढ़ा होगा कि 3 का मॉड 3 और -3 का मॉड भी 3. फिर आपने वेक्टर में मॉड पढ़ा होगा दैट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का मॉड होता है √a² प्लस b² प्लस c². फिर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर आया, यहाँ पे भी मॉडुलस है. तो इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन ऑल दीज मॉडुलस? यस, all these modulus are actually same. दुनिया में हर मॉड का मतलब सेम होता है and that meaning is distance from origin. तो modulus is always distance from origin. So see here, if this point is a comma b, then we simply know that this is a and this is b. So what is its distance from origin? Using Pythagoras theorem, we can say it is √a² plus b². अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वो भी हर जगह सेम होता है. मॉड z बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस दैट इज मॉड ऑफ a प्लस आई बी, और वो हमें क्या मिला? √a² प्लस b². दैट इज द मॉडुलस ऑफ z. तो मॉडुलस ऑफ z इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. नाउ सेकेंड क्वांटिटी, बिकॉज टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है तो एक क्वांटिटी से आप डिफाइन नहीं कर सकते. लाइक इफ आई से देयर इज अ पॉइंट, इफ आई से देयर इज अ पॉइंट जिसका मॉड है 2, सो कैन यू एक्चुअली यूनिकली डिफाइन दैट नंबर? नो, यू कैन नॉट. यू हैव टू गिव मी, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू सी अनदर क्वांटिटी ऑल्सो. क्योंकि ओरिजिन से 2 डिस्टेंस, मतलब मॉडुलस 2 का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से 2 डिस्टेंस. अब ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. All these points are at a distance 2 from origin. So if we want to uniquely define the numbers, then we cannot just rely on the modulus, we need another quantity. जैसे simple coordinate में बोले तो x, y था,
कॉम्प्लेक्स में बोले तो ए और बी था। ऐसे यहाँ पे मॉडुलस एंड सेकेंड थिंग इज आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं? आर्गुमेंट लिखते हैं ए आर जी जेड। नाउ दिस आर्गुमेंट इज बेसिकली ये वाला एंगल, इफ यू सी, सो दिस इज थीटा। नाउ यूजुअली within a minute this concept gets over कि what is that argument, ये angle, but it is very deep concept, very मतलब you should give it much more time than you are giving to modulus. How come? To see. So what is argument? Argument is the angle made by the vector joining origin to z, joining origin to z, ये येलो वाला वेक्टर है। नाउ वेक्टर क्यों बोला मैंने? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो वो सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है दैट विल टेक इट, दैट विल मेक इट अ वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट इज थीटा। तो अगेन एंगल मेड बाय द लाइन, नहीं वेक्टर, फ्रॉम ओरिजिन टू जेड, फ्रॉम ओरिजिन टू जेड, ओरिजिन एंड जेड आप नहीं बोल सकते, यू हैव टू से फ्रॉम ओरिजिन टू जेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन ACW। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली कंफ्यूजन रहता है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट देयर आर so many people who find it difficult to understand this or actually tell me this definition। फिर से समझो, एंगल ही तो है, अब एंगल है तो it will be what, it will be between the two lines, और एक लाइन तो फिक्स है, एक एक्सिस है, तो दूसरा लाइन ही तो आपको याद रखना है। एंड द सेकेंड लाइन इज दैट वेक्टर जो ओरिजिन से उस जेड को ज्वाइन करता है, और डायरेक्शन आपको फिक्स है, वी ऑलवेज टेक एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज। सो एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट joining origin to z with positive x-axis in ACW, that is anti-clockwise direction. So this is the argument. Now some people say tan inverse y by x. That is basically a wrong concept. You should not use that. So now we are going to solve some questions and we see what we are getting. So let's take z equals to 1 plus iota. z को 1 प्लस आयोटा अगर लेते हैं, सो कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा दोनों, बट इट इज नॉट राइट। सो 1 प्लस आयोटा इफ आई से, सो दैट पॉइंट विल बी 1, 1,1 होगा पॉइंट, बिकॉज दिस इज रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, अ फिक्स इज 1,1। नाउ मॉडुलस इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब in this case it is what, √2 पाइथागोरस, बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, so that comes out to be √2। now what is this angle, what is theta, and theta you can simply say 45 degree। so theta comes out to be 45 degree because बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, tan theta का वैल्यू 1 है, तो theta you can see simply pi/4। So this is how we find modulus and argument. Now I'm going to give you more examples and then you will solve it and you will find what actually the problem is. So the next number I will take -1 plus √3 iota, -3 minus 4 iota, √3 minus iota, then 2 minus 3, 4 minus 5i, 0 plus 0i, 7 minus 12i. These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मैंने कर दिया ऑलरेडी आपके लिए, दैट इज, तो एक लेट्स डू वन मोर, 1 plus 2i, और लेट्स टेक
1 plus root 3i. So these are the 10 questions for you to solve. I want you to pause the video and then you start solving the questions one by one. First you have to write its modulus, and then you have to write its argument, that is z. So seriously pause the video and solve these on your own, because you are going to make mistake, this is for sure. बट अगर आप देखोगे मुझे सॉल्व करते हुए, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम आपको आएगा. तो आपको देख के लगेगा कि हाँ यही तो मैं भी करता, ये तो ऑल गुड है, बट एक्चुअली इट इज a lot more than that. So I seriously advise you to solve on your own. And now I am going to solve it one by one. अच्छा चलो एक काम करते हैं, हाफ हाफ काम कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. सो मॉड मैं फाइंड कर लेता हूँ, आर्गुमेंट आप फाइंड कर लो. सो इज दैट ओके? ओके, सो लेट्स डू इट वन बाय वन. 1 plus root 3. Let me convert this to graph paper actually. Yes. So if I say 1 plus root 3, the point will be something like this. जो one block है, one line है, that is 1 unit. So this is be 1.73 जैसा होता है root 3. तो this is something like this. अब इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे. तो ये जो डिस्टेंस है, इफ यू सी दिस इज 1, दिस इज रूट 3, सो हाइपोटेन्यूज विल बी 2. नाउ फाइंडिंग मॉडुलस इज नॉट अ बिग थिंग, सो लेट मी डू इट फास्ट. 12 plus 7i, 144 plus let me और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 minus 12i minus 30. That is not a big thing. Argument is actually a big thing. So what is this angle? This angle is 60 degree. सबका आंसर सही आया था, no issue about that. Now the second is -1 plus root 3i. -1 plus root 3i जो second point है, that will be ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो मॉडुलस तो सिंपल आपको दिख रहा है 2 है, और आर्गुमेंट इज this angle. Always remember, angle will be always measured with a positive x-axis in anti-clockwise direction. So if you see, तो we can simply say कि ये जो angle, ये वाला angle है, green angle, if you see, this is 60 degree. क्योंकि ये रूट 3 है, ये 1 है, तो ये 60 होगा. बट अपना आर्गुमेंट इज नॉट 60, आर्गुमेंट इज बेसिकली 120 डिग्री. ओके, थर्ड की बात करते हैं, 3 minus 4i, तो इसमें आंसर आ जाएगा 53 डिग्री. नाउ कैलकुलेट, एंड इफ इट्स ओके देन वी कैन गो फॉरवर्ड. ओके, एक्चुअली नॉट ओके. -3 minus 4i है, -3 minus 4i will be somewhat here. Now if you join it from origin, what do I see? कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 है, that is okay, but एंगल ये पूरा एंगल होगा. This much angle, ये blue angle, sorry, this blue angle is very simple. Blue angle will be 53 degree. If you remember, tan theta यहाँ पे 4/3 आ रहा है, so that blue angle is 53 degree. But the argument is 180 plus 53 degree. 180 first quadrant, second quadrant plus 53 है, so that comes out to be 233 degree. Yes, we can do one thing. कि this is 37 and this is 90, so this is what? This is 127 degree. So argument I can say 127 also, but because we have already decided that we will take angle anti-clockwise, so what we will do is I will write here -127.
to 253 degree or minus 1 to 33 degree or minus 127 degree. Both would be the correct answer. So later I will tell you that a particular complex number may have infinite number of arguments. So let me clean this all up. Till then you solve the other questions. So this comes up to be 233 or minus 127. Now comes the fourth one actually, root 3 minus iota. ये 1 है, 2 है, तो root 3 minus iota यहाँ कहीं होगा. If you draw magnitude तो 2 है, that is very clear, and argument will be 30 degree, actually minus 30 degree. क्योंकि ये angle 30 degree है, that is sure. You know that because perpendicular upon base 1 by root 3. But argument is always anti-clockwise. अगर clockwise लेंगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा. Or if you want, you can go anti-clockwise. So this would be the angle which is 330 degree angle. Now the next question is 2. 2 कहाँ होगा? यहीं पे अगर I draw 2, so this is 1, this is 2. This is your complex number 2, red one. मैग्नीट्यूड तो आपको साफ दिख रहा है, that is 2, और आर्ग्यूमेंट, if you see how much angle it is making actually 0 angle. So argument is 0. Then comes minus 3. Minus 3 कहाँ होगा? Again let me clean this up. Minus 3 will be this point. तो अगर इसको वेक्टर से ज्वाइन करेंगे तो इसका लेंथ क्या है? That is 3 already given. The angle क्या है? The angle is basically 180 degree. It is not 0 degree, but it is 180 degree. Most of the students get it wrong. They write it 0 degree because they do not draw. Draw करने की आदत डाली. Next we have 4 नहीं, 4 iota लिख लेते हैं. 4 iota कहाँ होगा? 4 iota, if I say, so 4 iota will be 2 to 4. Now I am taking it 4. Scale है, जो चाहे मान सकते हैं, but preferably x और y दोनों का स्केल सेम रखना चाहिए. Now this is 4 iota. ये जो लेंथ है वो तो 4 हो गया, तो mod 4 हो गया. And what about the angle? Angle is basically 90 degree. And similarly minus 5i का angle minus 90 होगा. And now comes this 0 plus 0i. But before that I would like to solve this 5 minus 12i. देखना 2, 4, 6 तो यहाँ 5 होगा. Minus 12 है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12. So this would be the point. मॉडुलस तो बहुत सिंपल है. दिस इज 12, दिस इज 5, तो मॉड विल बी 30. बट आर्गुमेंट की अगर बात करें तो आर्गुमेंट विल बी, अगर दिस एंगल आई सिंपली से, तो एंगल तो tan इनवर्स 12/5 हो जाएगा. बट इफ यू सी द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, सो आई विल से माइनस ऑफ दिस, और यू कैन से 2 pi minus tan इनवर्स 12/5. Now these kind of questions जिसमें हमें actual में angle नहीं पता होता है, they will come later and we'll do more and more, and later you'll be able to manage inverse functions also, inverse trigonometry also, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, but that is nothing special basically. And finally comes this 0 plus 0 iota. mod तो आपने बता दिया, argument क्या हो. So if I talk about the argument of this number, so number origin पे ही, अब origin से origin को ज्वाइन करेंगे because we used to join origin to z. तो origin से z को ज्वाइन करेंगे तो we get a point, we are not getting any line.
और एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो लाइन टू लाइन होता है, लाइन से पॉइंट के एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. सो इन दिस केस वी से आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट. एक्चुअली इट इज नॉट अ यूनिक आर्गुमेंट. पॉइंट है, पॉइंट लाइन के साथ क्या एंगल बनाएगा, वैसे तो कोई एंगल बनाता नहीं है. अगर आपको अज्यूम करना है तो यू कैन से वॉट एवर एंगल यू वॉन्ट, यू कैन अज्यूम दैट. सो दिस इज basically modulus and argument of complex number, which is the, I will say, 50% of complex number based on this modulus and argument. Modulus अभी यहाँ काफ़ी आसान है, बाद में उसके एप्लीकेशन देखेंगे, वो भी काफ़ी आसान ही होते हैं. So modulus and argument are over. Now the next part is called conjugate of z equals to a plus ib. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब आप सबको पता है. कॉन्जुगेट अभी तक हम कैलकुलेट करते आए हैं. 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3, रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट रूट 3 प्लस 1. नो, रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट रूट 3 प्लस 1 नहीं, माइनस रूट 3 माइनस 1 होता है. बट यूज आप मोस्ट ऑफ द केसेस में, आई नो कि यू हैव यूज रूट 3 प्लस 1 और कोई गलती भी नहीं हुई है, बिकॉज आपसे कॉन्जुगेट कभी पूछा नहीं गया. यू ऑलवेज यूज इट टू रैशनलाइज, और रैशनलाइज में वी मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1 या माइनस रूट 3 माइनस 1 डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड. वो सिंप्लीफाई हो जाता है. बट द आइडिया ऑफ rationalization is to multiply by the conjugate, और conjugate का मतलब होता है irrational का साइन चेंज, जो रूट है उसका साइन चेंज करना. सो रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट माइनस रूट 3 माइनस 1 होगा. बट दीज आर बेसिकली rational conjugate और irrational conjugate. ऐसा what now we are considering is complex conjugate. तो these are basically complex conjugate of this. मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल नंबर है, उसके हिसाब से हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है. एंड कॉन्जुगेट इज बेसिकली इमेज ऑफ z इन रियल एक्सिस. रियल एक्सिस में जो इमेज होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर. Mathematically, if I say, so it is a number. Let's say कि Z1 एक नंबर है, उसका कॉन्जुगेट Z2 है, तो Z2 should be a number such that Z1 plus Z2 भी रियल हो और Z1 into Z2 भी रियल हो. And there is only one possibility, and that is written as Z bar, and which is A plus IB का बार सिंबल है कॉन्जुगेट का, विच इज a माइनस ib. सो इफ यू सी द नंबर a प्लस ib, कॉन्जुगेट a माइनस ib, दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2a, दैट इज रियल. मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज अगेन रियल. So this is the only number, a minus ib is the only number which will be added and multiplied to a plus ib will result in real number. Similarly से मैं बोल रहा था कि रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा. एक ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, both the cases should result in no real नहीं, rational number, because that time we are talking about rational conjugate. तो अगर मैं रूट 3 प्लस 1 इसमें ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? we will get 2 root 3, which is not a good idea. we wanted a rational number. हाँ, मल्टीप्लाई करने पे 3 minus 1 2 आ जाएगा, बट यहाँ 2 root 3 सम आया था तो it will not work. So that's why I said that the conjugate will be changing the sign of radical sign. Now if I add these, I will get minus 2, that is a real rational number. Multiply करेंगे तो I will get 3
-1 का नेगेटिव -2। तो सम और प्रोडक्ट दोनों रियल होने चाहिए, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलेंगे, और सम और प्रोडक्ट दोनों रैशनल हो तो उसे हम रैशनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। सो करंटली वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उसके लिए क्या बताया, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी हो जाता है। अब ध्यान से बात को सुनना, किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सिंपली चेंज द साइन ऑफ आयोटा, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड, कुछ भी और नहीं चाहिए। आई का साइन चेंज करो, काम खत्म, दैट विल बी कॉन्जुगेट। So if I go to these numbers, so first 1 plus root 3i का conjugate क्या होगा, that will be 1 minus root 3i, minus 1 plus i root 3 conjugate क्या होगा, that will be minus 1 minus i root 3, next will be minus 3 plus 4 iota, next will be root 3 plus iota, next will be 2 का conjugate 2, because I नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, नो इश्यूज, दैट 2 का conjugate 2 ही रहेगा। -3 का conjugate -3 ही रहेगा। 4i का conjugate -4i हो जाएगा, -5i का conjugate +5i हो जाएगा, 0 का conjugate 0 रहेगा, 5 minus 12i का conjugate 5 plus 12i हो जाएगा। But these were तो very simple questions, इसमें तो कुछ करने का था नहीं, after I tell you कि i का साइन चेंज करना है। Now I am going to give you more examples. I will be writing values of z and you have to find the z bar. So the first question is 1 plus i whole square, इसका conjugate क्या होगा? So what you are going to do is a square plus b square plus 2ab, that is 2i, तो इसका conjugate क्या हुआ, -2i. Is that correct? But what I will do is I will stick to my plan, and my plan is to change the sign of iota, and that will give you 1 minus i whole square, खत्म. I am not going to solve this unless it is asked for. हमसे पूछा नहीं गया है उस फॉर्म में, कॉन्जुगेट पूछा गया है, तो आई कैन सिंपली राइट 1 माइनस आई का स्क्वायर बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा, दैट्स इट। आप फाइंड कर लो, उसका वैल्यू अपने आप -2 आ जाएगा। नाउ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सिंप्लीफाई, सिंपली चेंज द साइन ऑफ आयोटा, मतलब 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, और तो 2 प्लस 3i का पार 3 माइनस 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? पार में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, होता होगा। डू आई केयर? नो, आई डोंट केयर, बिकॉज इमेजिनरी नंबर है। जब इमेजिनरी नंबर की बात आई गई है तो एवरीथिंग इज डिफाइंड, सो आई विल से दिस इज 2 माइनस 3i का पार 3 प्लस 4i। लेट्स गो फर्दर। log ऑफ 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा? ना यू में से कि सर log तो नहीं होता है, बिकॉज नेगेटिव नंबर का ही log नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का log कैसे होगा? एंड द आंसर टू दैट इज, भाई नेगेटिव नंबर का log नहीं होता है, ये तो रियलिटी में रियल नंबर की बात कर रहे होते हैं तब। करंटली व्हाट द चैप्टर्स नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स हैं यहाँ पे, और इमेजिनरी में तो एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड सो it will be log 2 minus 3i, as simple as that. और let's try tan inverse 2i, tan inverse में आयोटा imaginary है, anything is possible, so the conjugate will be, by now you know it is -2 iota. Clear हो गई बात? So this way we can find conjugate of any damn number, just change the sign of iota. So modulus, argument and conjugate.
Now I am going to start one concept, that is polar form, also Euler form. यूलर बोलते हैं, आयलर बोलते हैं, ऑयलर बोलते हैं. The correct name is basically Euler, but you can say Euler, you can say Euler, whatever you want, nobody is going to complain. And third was Cartesian form. So complex numbers के ये तीन अलग अलग फॉर्म हैं. कार्टेशियन फॉर्म तो सिंपल x प्लस आई वाई होगा, बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कॉमा y होते थे, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको x प्लस आई वाई बोलते हैं. बट व्हेन आई कम टू पोलर फॉर्म एंड आयलर फॉर्म, व्हाट हैपेंस, लेट्स सी. पोलर कोऑर्डिनेट्स you must have heard. पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r and theta. r होता था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और थीटा होता था एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो बाय नाउ यू मस्ट बी क्लियर दैट जो हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाला है ना, वही r और थीटा है. पोलर फॉर्म किसी भी नंबर का r और थीटा होता है. पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कॉल इट. सो इफ देयर इज दिस नंबर z that is x plus iy, so I will say okay, this is x, this is y. So this distance from origin, which was called mod z, that is under root x square plus y square, is also called r, distance from origin, and this angle is also called theta. So now try to understand, if this length is r, base angle is theta, so this base will be r cos theta. Physics में बहुत यूज करते हैं हम लोग. And this height will be r sin theta. फिजिक्स में काफ़ी यूज करते हैं. सो व्हाट वी सी दैट कि अपना जो x था वो हो गया r cos थीटा, जो y था वो हो गया r sin थीटा. मीन्स our number z which is x plus iy comes out to be r cos theta plus I into r sin theta. r मैं कॉमन ले लेता हूँ. And this is called polar form. This is called Cartesian form. Now r तो चलो r है, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा का वैल्यू e पावर i थीटा होता है. And this is called Euler form. कैसे? साइन थीटा का सीरीज आपको पता होगा. साइन थीटा का सीरीज होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ऐसे कॉस थीटा का सीरीज होता है, ऐसे ई पावर एक्स का सीरीज होता है. तो आप कॉस का सीरीज, साइन का सीरीज, फिर कॉस प्लस आई साइन का वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी सेम एज ई पावर आई थीटा. इट इज़ नॉट important, so I'm not doing it, but it is very simple concept if we know the expansions. और expansions अगर आपको सीखना है तो I will tell these expansions in some other chapter. Maybe usually I do it in the chapter limits. Limit पढ़ाता हूँ मैं, तो ये expansions बताता हूँ in profile 4 if you can find the video, else it is not that important. So these are the different forms of complex number. So everywhere if you see, so only 4 things are there: x, y, r और theta. x और y हमें पता ही है, r और theta हमें पता चल जाएगा क्योंकि that is modulus and argument. So if I say कि 1 minus root 3 iota, that is a Cartesian form. तो इसका पोलर फॉर्म अगर निकालना हो तो what I can say कि r is to then cos theta. 1 माइनस आई रूट 3 का थीटा निकालोगे तो माइनस 60 डिग्री आएगा प्लस आई साइन माइनस 60. दैट्स इट. एंड पोलर फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा आर ई पावर आई थीटा. ऑल दीज फॉर्म्स आते. तो सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ आर और थीटा पता हो तो बस यहाँ पुट कर देने का. दिस इज पोलर फॉर्म and this is Euler form. सिर्फ r और थीटा का वैल्यू रखना है, बाकी everything will remain same.
Let's do some more examples. Okay. This. Focus on this first one. Euler form नहीं, polar form बताओ. Polar form will be 2 into cos 60 plus I sin 60. 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3. You can say anything. You can say pi by 3 or you can say 60 degree. हाँ, keep in mind pi by 3 लिखने पे रेडियन बोलना कंपल्सरी नहीं है, रेडियन का सिंबल लगाना कंपल्सरी नहीं है, बट व्हेन यू यूज 60 तो यू हैव टू टेल 60 डिग्री और एंड यू हैव टू राइट 60 डिग्री. नाउ सेकंड वन. वेट. ओके, सेकंड वन की बात करते हैं. मॉडुलस. मॉडुलस इज 2 आर्गुमेंट 120. तो पोलर फॉर्म विल बी 2 into cos 120 degree plus I sin 120 degree, और you can say 2 cos pi में क्या होगा रेडियन में 2 pi by 3. तो 2 into cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. Euler form 2 into e power I 2 pi by 3. Next 5 into cos 233 degree plus I sin 233 degree. पाई में लिखना है तो 233 pi by 180. Simple. Or you can say 5 into cos minus 127 degree plus I sin minus 127 degree. सिंप्लीफाई नहीं करना है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सिंप्लीफाई कर दोगे तब तो वो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, वैसे का वैसा रहेगा cos और sin में, तो दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. So all these things can now simply be written in any form that you want. So you can practice and write all these numbers in polar form as well as Euler form. तो अगर आपको r और थीटा दिया हुआ है तो हाउ डू वी अगर x और y गिवन था तो वी हैव कन्वर्टेड इट टू r एंड थीटा फॉर्मेट. ना सपोज पोलर फॉर्म दिया है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा. r और थीटा अगर गिवन है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. और इफ यू सी दिस x इज r into cos थीटा and this y is r into sin थीटा. तो r और थीटा अगर गिवन है तो कन्वर्टिंग देम टू x and y is no big deal. We can simply r cos theta will be x and r sin theta will be y. So this is basically polar form. Okay. So now you are going to do one question, and that is called a new topic, I will say, algebra of complex numbers. Algebra में basically क्या आता है? Addition, subtraction, multiplication and division. So let us say z1 plus z2. z1 plus z2 a1 plus ib1 plus, बोलो z2 क्या होगा? z2 will be a2 plus ib2. जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो सारे नंबर्स ऐड होते हैं, बट अगर हम उसको एक साथ करेंगे तो I will write a1 plus a2, रियल पार्ट एक साथ कर देते हैं, प्लस i के साथ b1 प्लस b2 अलग कर देते हैं. सो दिस इज द समेशन. अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या होगा? माइनस करना तो माइनस कर देते हैं, वो a1 माइनस a2 हो जाएगा और b1 माइनस b2 हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो से कि प्लस और माइनस में क्या होता है? रियल वाला रियल के साथ प्लस माइनस और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज मल्टीप्लीकेशन. z1 into z2, a1 plus ib1 into a2 plus ib2. यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सारे ही होने वाले हैं. So let's multiply and I will get a1 a2 plus I a1 b2. अब ये सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. I a2 b1 plus I square b1 b2. Now I square we know that is minus 1, मतलब this underlined part is basically minus b1 b2.
which is real, तो let's group a1 a2 minus b1 b2 together, और बाकी का जो पार्ट बचा वो i के साथ है, a1 b2 प्लस a2 b1. सो जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो वी मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स टू एवरी नंबर टू एवरी नंबर. फिर जो रियल है वो एक साथ कर लेने का, जो इमेजिनरी है वो एक साथ कर लेने का. एंड फाइनली वी कम टू z1 अपॉन z2 a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सपोज c प्लस सॉरी स्टैंडर्ड ले लेते हैं a2 प्लस आई b2. अब मल्टीप्लिकेशन का एज सच कुछ रूल अपने पास है नहीं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रैशनलाइज इट. कैसे? a2 प्लस आई b2 का कॉन्जुगेट होता है a2 माइनस आई b2. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by conjugate of denominator, and this process is called rationalization. Okay, actually not, this process is called realization. Why do we call it why do I call it realization? Everybody say rationalize करना, but this is not rationalization, because rationalization का मतलब क्या हुआ? rational बनाना ना. but यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जब √3 प्लस 1 में माइनस √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करते थे तो रैशनल होता था, तो वी यूज टू कॉल देम रैशनलाइजेशन. बट हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं नीचे के टर्म्स को, लेट्स डू इट. इफ यू सी द डिनोमिनेटर, व्हाट यू सी इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b square. Now minus I square is what? Minus I square is basically plus 1. So what we get is a2 square plus b2 square. क्या मिला हमें? ये हमें रियल नंबर मिला, तो नॉन रियल से रियल हो गया, तो we call it realization. So this is not rationalization, this is realization. It's not like something self-realization हुआ हमें, but this process is actually realization. अब ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, I will get a1 a2 minus I a1 b2 plus I a2 b1 minus I square b1 b2. रियल पार्ट अगर देखोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 रियल होगा. लास्ट वाला पार्ट देखना, माइनस आई स्क्वायर b1 b2, माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1, तो वो प्लस b1 b2 हो जाएगा, प्लस आई के साथ मिला a2 b1 माइनस a1 b2, और डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट्स डू सम एग्जांपल्स. z1 is 2 plus 3i, z2 is 3 minus 4i. Let me add them. So z1 plus z2 will be 2 plus 3 5 minus iota. Simple. z1 minus z2, if I see, that will give you minus 1 plus 7 iota. z2 minus z1, if I see, that will give you 1 minus 7 iota. This should be all clear. Now I am going to find z1 into z2. 2 plus 3i into 3 minus 4i. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 6 minus 8i प्लस 3i से मल्टीप्लाई करें तो 9i minus 12i square. Now this 12i square is minus 12, और साथ में माइनस भी है तो दैट बिकम प्लस 12. i स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता था, तो 12 प्लस 6 इज बेसिकली 18, एंड दिस 9i minus 8i is plus i. So that is the multiplication. And next is division. खुद से कर लो पॉज करके. What I am going to do is realization of denominator by multiplying its conjugate.
numerator what do we get? 2 3 जा 6 plus 8i plus 9i plus 12i square divided by 9 minus 16i square. In the numerator I will find this is minus 12 and plus 6. Minus 12 plus 6 is minus 6 plus 17 iota divided by 25 if you see. And similarly we can find Z2 by Z1 also, and that is your homework. And after finding Z2 by Z1 you multiply this answer with this answer, they should give you 1 because एक Z1 by Z2 है, एक Z2 by Z3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाना चाहिए. So that is algebra of complex numbers. One more example for you. Let us take Z1 is R1 cos alpha plus I sin alpha. Let us take Z2 is R2 into cos beta plus I sin beta. So if we multiply this Z1 Z2, let me multiply R1 R2 outside only, और ये बचा अपना cos alpha plus I sin alpha and cos beta plus I sin beta. Take a pause and multiply on your own. I am going to do it. Cos alpha cos beta plus I cos alpha sin beta. अब I sin alpha मल्टीप्लाई करेंगे, so I will get I square sin alpha sin beta. What I am getting is cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B is cos A plus B. और यहाँ अगर मैं I कॉमन ले लेता हूँ, so what do I get is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta sin A cos B plus cos A sin B, that is sin A plus B. Now you see this first number Z1. Z1 का मॉड क्या है? Z1 का मॉड है R1, Z2 का मॉड है R2 और Z1 इंटू Z2 का मॉड R1 इंटू R2. सो व्हाट आई से कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मॉड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो Z1 का मॉड R1 था, Z2 का मॉड R2 था, मल्टीप्लाई किया तो मॉड आ गया R1 इंटू R2. अच्छा, Z1 का आर्गुमेंट क्या था? Z1 का आर्गुमेंट है अल्फा. If you see and compare it to polar form, standard form, you will see कि this is R into cos theta plus I sin theta. और Z2 का आर्गुमेंट है बीटा. तो Z1 का आर्गुमेंट अल्फा, Z2 का आर्गुमेंट बीटा और Z1 Z2 का आर्गुमेंट नो नॉट अल्फा बीटा. यू सी Z1 Z2 का आर्गुमेंट क्या है? Z1 Z2 का आर्गुमेंट है अल्फा प्लस बीटा. सो जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं. मॉड जो था वो मल्टीप्लाई हुआ है, जो आर्गुमेंट है वो ऐड हो जाएगा. सो आई विल से कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, when we multiply two complex numbers, their modulus also multiply and their arguments will be added. A for addition, A for argument, M for modulus, M for multiplication. तो M for mod will M for multiply, A for argument will A for add. तो mod मल्टीप्लाई होंगे, आर्गुमेंट ऐड होगा when we multiply two complex numbers. अच्छा, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? If we divide two complex numbers तो उनके mod डिवाइड हो जाएंगे. तो मल्टीप्लाई करने में mod मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड करने में mod डिवाइड हो जाएंगे. मल्टीप्लाई करने पे आर्गुमेंट ऐड हुआ है, मल्टीप्लाई करने पे आर्गुमेंट ऐड हुआ है.
तो डिवाइड करने पे आर्गुमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड, and that is some properties of this modulus and argument. So now I am going to write the properties of modulus, argument and some conjugate also. So let's do properties. पहला बात तो हमने देखा था कि जो z बार था उसका मॉड भी z के मॉड के इक्वल ही था, बिकॉज a प्लस आई बी का मॉड और a माइनस आई बी का मॉड बोथ विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इफ यू सी इट geometrically, तो if this is z then where will be z bar, and I said कि z bar is image of z in real axis, तो ये z bar होगा. अब ये हो गया mod z, ये डिस्टेंस, और ये हो गया mod of z bar. बोथ आर इक्वल, तो आई विल से कि दोनों का मॉड इक्वल है. अब जब डायग्राम बन गया है तो नाउ टेल मी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है. मतलब ये आर्गुमेंट न्यूमेरिकली इफ यू सी दोस एंगल्स आर बेसिकली सेम. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है एंड सो इट बिकम माइनस थीटा, और यू कैन से माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड. तो अगर कॉन्जुगेट लोगे तो मॉड विल रिमेन सेम, आर्गुमेंट बिकम नेगेटिव. ओके, अच्छा, z1 इंटू z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2. सिंपल अभी अभी किया. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड क्या आएगा, इंडिविजुअल मॉड का प्रोडक्ट r1 इंटू r2. अच्छा, z1 अपॉन z2 का मॉड क्या आएगा. सिमिलरली वी कैन से मॉड z1 अपॉन मॉड z2. अच्छा, मॉड z1 इंटू मॉड z2 किया, सॉरी मॉड ऑफ z1 इंटू z2 किया तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 आए. अगर हम मॉड ऑफ z1 इंटू z1 करेंगे तो मॉड z1 इंटू मॉड z1 मतलब मॉड z1 का स्क्वायर. अगर z इंटू z का मॉड निकालेंगे तो मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z मतलब मॉड z का क्यूब. सो सिमिलरली वी कैन से कि z बार n का जो मॉड होगा दैट विल बी सिंपली मॉड z बार n. डन. नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मोर लाइक वेक्टर्स. सो इफ आई से कि भाई z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर, तो यू रिमेंबर कि वेक्टर में होता था वेक्टर a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. यहाँ भी वही होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. उसको एक और फॉर्म में लिखा करते थे, क्या था, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी. सो दिस विल बी दिस. अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं होता है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार. नाउ यू हैव टू लर्न दिस, यू नीड टू लर्न दिस कि z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार इज सेम एज 2 मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा. याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा. देन कम्स आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 अभी हमने देखा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं. तो आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2. अच्छा, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 क्या होगा, तो आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 होगा आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2. कुछ याद आ रहा होगा आपको, यू मस्ट बी लुकिंग एट दीज टू फॉर्मली एंड आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा और वो और भी क्लियर हो जाएगा व्हेन आई राइट z बार n का आर्गुमेंट क्या होगा. z1 z2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंट ऐड होते हैं. तो z और z मल्टीप्लाई करोगे तो z का आर्गुमेंट ऐड होगा 2 बार, 2 थीटा आ जाएगा.
z को क्यूब करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गुमेंट 3 बार ऐड होगा, और n बार मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गुमेंट n बार ऐड हो जाएगा, n थीटा, और यू कैन से n आर्गुमेंट z. Now collectively looking at these three, you can say कि this is exactly like log. If you remember, log AB का वैल्यू होता था log A plus log B. log A upon B का वैल्यू होता था log A minus log B, और log A power n होता था n log A. So it is exactly like that. There is no relation between these, but they work like that only. So that is आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी. कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं. कॉन्जुगेट में इफ यू सी तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट हम देख चुके हैं. अच्छा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, 2 बार कॉन्जुगेट, 2 बार आई का साइन चेंज, मतलब एक्चुअली नो चेंज ऑफ साइन. सो दैट विल गिव यू सिंपली जेड. Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? Z1 conjugate plus Z2 conjugate. To be more precise, I will say कि Z1 star Z2 का conjugate equal to Z1 conjugate star Z2 conjugate. Star का मतलब क्या हुआ? Star का मतलब है not multiplication नहीं है ये, any operation. Z1 plus Z2 का conjugate, Z1 conjugate plus Z2 conjugate, Z1 minus Z2 का बार, Z1 बार minus Z2 का बार, Z1 into Z2 का बार, Z1 बार into Z2 बार, Z1 upon Z2 का बार, Z1 बार upon Z2 बार, Z1 power Z2 का बार, Z1 बार पार Z2 बार. सो बार कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो वी कैन सिंपली टेक conjugate of every individual number. So these were some properties of complex numbers, modulus, argument, and this. One more mod में I would like to tell you. एक और प्रॉपर्टीज पढ़ते थे हम लोग, प्रॉपर्टी दैट वाज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? mod of A plus minus B is less than equal to mod A plus mod B and greater than equal to mod A minus mod B. Similarly यहाँ भी होगा Z1 plus Z2 का mod is less than equal to mod Z1 plus mod Z2 and greater than equal to mod Z1 minus mod Z2. और इसका भी mod ले लोगे तो भी होल्ड करेगा. और अच्छी बात, Z1 minus Z2 भी ऐसा ही होता है. Now why do we call them triangle inequality? First you can say कि इसके 3 पार्ट है, एक लेफ्ट, एक मिडिल, एक राइट, 3 पार्ट है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी. बट इन रियलिटी इट इज ट्रायंगल से रिलेटेड होता है. आपको पता है ना, ट्रायंगल के 2 साइड का सम थर्ड से ज्यादा होता है. इफ यू नो वेक्टर में, वेक्टर ए और बी जब 2 साइड होते थे ट्रायंगल के तो उनको ऐड और सबट्रैक्ट करने से क्या मिलता था? अगर ट्रायंगल के फॉर्म में देखें, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करने से थर्ड वाला साइड मिलता था इन अपोजिट डायरेक्शन. सबट्रैक्ट करने से का मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर दो. पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे, सो व्हाट वी गेट कि एक में मेन डायगोनल जो उनके कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल, और दूसरा देखोगे तो उसका दूसरा वाला डायगोनल. तो बेसिकली Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 में से कोई भी पिक करोगे तो वो Z1 और Z2 के साथ एक ट्रायंगल बनाएगा और थर्ड साइड बनाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. एंड वी नो दैट कि थर्ड साइड का लेंथ हमेशा इंडिविजुअल 2 साइड के सम से तो कम होता है, एंड ऑल्सो इंडिविजुअल 2 के डिफरेंस से ज़्यादा भी होता है. लाइक इफ आई से कि एक ट्रायंगल है 2, 3 और 4 साइड का, सो इन दोनों के सम इससे ज़्यादा है. द थर्ड साइड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और इनका जो डिफरेंस है वो इससे कम है, 4 से कम है, डिफरेंस इज 1. सो एनी 2 साइड्स का सम थर्ड से ज़्यादा होता है एंड एनी 2 साइड का डिफरेंस थर्ड से कम होता है ट्रायंगल में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी.
I'll take a break here. Thank you. We will continue.